Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have make a comparison study between the all three sectors, and we have also made the comparison that which sector has more improved and which sector has less improvement. Today, in this video, we are going to discuss about that where the most of the people's employed. So for that, we will just take a look on the given draft. Let's have a look. See in the given draft, you can take a look shares of the sectors in employments. In the earlier time, as I already told about that 71% of the low peoples are already working in the primary sectors. Around 11% peoples are was working in secondary sectors, and rest around 18% peoples are working in tertiary sectors. See the differentiation over there. If the total 100 workers are there, now which sector has more implementation? तो आप देख सकते हैं जहां पर पहले प्राइमरी सेक्टर्स में 71% वर्कर्स थे, now it is around 44% workers only, and where there are 11% it is 25%, and जहाँ पर 18% थे वहाँ पर ये 31%. तो आप देख सकते हैं कि as we have earlier discussed about that the tertiary sector has spread in very quick way, or it gets a very quick development in the tertiary sector. So here you can also take a look over there that कि why the employments in the tertiary sector has increased in so rapid ways, because the tertiary sector has developed a lot and new services is already introduced. I told about like shopping, transportation and other things. तो that is the reason कि tertiary sectors में employment पे सबसे ज़्यादा तेजी आई है और प्राइमरी सेक्टर्स के जनरल एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो डाउनफॉल हुआ. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेयर आर द मोस्ट पीपल्स आर एम्प्लॉयड नाउ. तो इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस, येट इन द 44% ऑफ द पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द agriculture based activities, that is goes under the primary sectors. But if we compare it with the previous data, that is from 77 to 78, so we can see that earlier there was a 71% people those who was working in agriculture sector. Now they become only 44%. What is the reason behind that? Because the developments in technology and in emergence of the IT sectors has increased a lot of needs in the developments, and new factories has been established. So therefore the people those who are working in the agriculture sector has changed their profession and they start working in a factory, or they start working and providing the services to the people. So therefore the tertiary sector are just developing in a very rapid way. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि एक अंडर एम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है, व्हाट डज द मीन्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. देखिए वी विल जस्ट डिस्कस एंड वी फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्जैक्टली एक टर्म आता है व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आपने ग्राफ 2 देख लिया, और ग्राफ 2 में देखिए व्हाई इट इज अ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स हैपन इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. देखिए even though the industrial output or the productions of the goods went up more than nine times during the periods, employments in the industry went up and around 3 times. ठीक है, and the same applies in the tertiary sectors as well, while the productions in the service sectors rose is 14 टाइम. आप देखिए सर्विस सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 14 टाइम रोजेस यानी बढ़ गया है. तो वी हैव डिस्कस दैट सर्विस सेक्टर गेट मैक्सिमम डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एज द रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर्स. आप देख सकते हो कि फिर भी देखिए आई टोल्ड अबाउट दैट द रॉ मटेरियल इज जनरली बीइंग डेवलप्ड बाय द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. तो वन सेक्टर इज नॉट अ इंटरडिपेंडेंट, ऑल दी सेक्टर्स आर डिपेंडेंट. तो जब प्राइमरी सेक्टर्स का इंप्रूवमेंट होगा तभी सेकेंडरी सेक्टर होगा और तभी टर्शियरी सेक्टर होगा. यानी जब तक फैक्ट्री या वो चीज़ें डेवलप नहीं होंगी तब तक सर्विस भी नहीं होंगी. इसलिए आज भी जो है वो मोर देन हाफ जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है या प्राइमरी सेक्टर से ही आता है जीडीपी में. मेनली इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओनली अबाउट द 1/6 ऑफ द जीडीपी. In contrast, this the secondary and tertiary sector provide the rest of the production, whereas the employers about half of the people.
आप देख लीजिए लगभग 50% जो है आपका जो है अराउंड वो प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी में अभी जा रहा है लगभग, क्योंकि 44% के आसपास तो अभी भी है। और उसके अलावा जो बचा हुआ हाफ है उसमें दो सेक्टर्स कंसराइज कर जाते हैं, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स है, और वो रेस्ट 50% पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या, डज दिस मीन्स दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच एज दे कुड? क्या इसका ये मतलब है कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर्स के वो उतने प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए? देखिए व्हाट इट मीन्स, देयर आर द मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी, सो इवन you move a few peoples out, productions will not be affected. And in other words, the workers in agriculture sectors are under employed. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका मतलब होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एज ए जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की फैमिली के पास जमीन है, अब अर्लियर उसके पापा या उसके फादर जो थे वो अकेले उस पूरी जमीन को कल्टीवेट कर लेते थे। अब क्या है, अगर मान लो उनके 4 बेबी हैं या 4 सन हैं, तो वो ज़मीन के 4 टुकड़े हो गए और चारों ने उसी ज़मीन पे डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। तो जो काम एक पर्टिकुलर पर्सन कर सकता था, आज वो वर्क करने वाले 4 हैं। तो उनमें से जो 3 हैं वो आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाएंगे। तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम हमारे देश की ये है कि मैक्सिमम पीपल हैज इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बट द लैंड रिसोर्स इज लिमिटेड and they are not giving as much they can give. They should leave the agriculture sector and they should move for the next sectors too, क्योंकि वो जितने भी एक्स्ट्रा पीपल हैं वो सारे के सारे अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाएंगे या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, समझ आया व्हाट डज द मीन्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट? सपोज कि एक शॉप है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, उस शॉप को चलाने में लगभग 2 पीपल्स या 2 लोग बहुत हैं, लेकिन अगर उस शॉप को चलाने में 5 से ज़्यादा लोग लग गए और चार सारे के सारे उसी शॉप को चला रहे हैं, तो अगर उन 5 में से 3 को हम हटा भी देते हैं तब भी शॉप में, ये शॉप को ऑपरेटिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 लोग उसको आराम से चला ले रहे हैं। तो उसमें 5 में से जो 2 हैं वो तो एम्प्लॉयड है, और जो बचे हुए 3 हैं वो आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो अपनी 100% पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इफ ए सिचुएशन इन विच द पर्सन कैन नॉट is pretend to be is appears to be an employer but cannot use his whole production, आप कह सकते हो potentials for making a productions। यानी एक ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें इंसान या एक पर्सन है वो एम्प्लॉय तो नज़र आ रहा है बट वो अपने पोटेंशियल के बराबर वर्क नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गॉट दैट पॉइंट? Okay, now to make it more clear, just take a look on the given example. एक example जो दिया है वहाँ पर देखिए, Lakshmi owning about 2 hectares of unirrigated land depending only on the rain for growing the crops like ज्वार and अरहर। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन है? लगभग 2 हेक्टेयर्स है, जो कि अनइरिगेटेड है, और वो उसमें जो उगाती है ज्वार उगाती है और अरहर उगाती है, और वो रेन पे डिपेंड रहती है, खुद इरिगेट नहीं करती है। वो सोचती है कि बारिश होगी उससे उसका इरिगेशन हो जाएगा। ऑल द 5 मेंबर ऑफ हर फैमिली इन द प्लॉट्स थ्रू आउट्स द ईयर, ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, पांचों के पांचों उसी प्लॉट पे वर्क करते रहते हैं पूरी साल। देखिए वाई दे डू नॉट नाउ वेयर एल्स टू गो टू वर्क। अब उनके वो क्यों करते हैं सारे के सारे? तो उसके पहला रीज़न क्या है कि दे हैव नाउ वेयर नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। उनके पास और कोई जगह नहीं है जहाँ पर गांव में वो जाके काम कर सकें। और यू विल सी दैट एवरी वन is working, none remain idle, but in actually their labor effect get divided। ठीक है, अब देखेंगे कि 5 के 5 वर्क कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं है, लेकिन उनका जो लेबर इफेक्ट है वो डिवाइड है। ईच वन इज डूइंग सेम सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। अब 5 हैं जहाँ पर एक बंदा काम कर सकता है, वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो दिख तो रहे हैं वर्क करते हुए, लेकिन क्या है उनका जो लेबर इफेक्ट है वो 100% नहीं है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क, हर एक पर्सन क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, लेकिन उनमें से कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। गेट माई पॉइंट? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि ही और शी इज 100% एम्प्लॉयड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट where the people are
apparently working but all of them are made to less than their potentials। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बता दिया इसके थ्री नेम्स हो सकते हैं, एक टू नेम सॉरी, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दिखता तो है कि पर्सन वर्क कर रहा है लेकिन वो अपनी 100% पोटेंशियल्स को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ underemployment is hidden contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called the disguised unemployment। समझ आ गया? तो इसमें क्या होता है कि अनएम्प्लॉयड नजर नहीं आता है बंदा और अनएम्प्लॉयमेंट उसका हिडन रहता है, तो ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल व्हाट डज द मीन्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके। Now we have discussed about that what does the means of disguise unemployment, and we see that in our country there is a unemployment and disguise unemployment. Both kinds of the unemployment is exist in our country. Now the question rises in our mind, that is how to create the more employments. So for making a more employments activities, the government has made a lot of provisions, and some of them we are going to discuss right now. Just take a look। देखिए, आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च सम ऑफ द आइडियाज एंड वेयर दे कैन गिव द प्रॉपर्टीज टू द अदर्स टू। जैसे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट्स ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स देने के लिए स्पेशली इन रूरल एरियाज दे हैव आल्सो स्टार्टेड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। अंडर दैट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वन प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड मनरेगा। इट वाज बीइंग लॉन्च्ड इन 2005। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ताकि देखिए जनरली डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज बीइंग अपीयर्स और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बीइंग अपीयर्स इन रूरल एरियाज ओनली। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अपीयर होता है, जबकि रूरल एरियाज में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर होते हैं। एक डिसगाइज्ड कि लगता तो है कि बंदे फील्ड पे जॉब कर रहे हैं बट वो उनके पोटेंशियल्स के बराबर जॉब नहीं होती है। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम्स एंड ही गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबाउट वुड टर्म्स इज लॉन्ग टाइम इम्प्लीमेंट्स फॉर द शॉर्ट टर्म्स। वी नीड अ क्विक मेजर्स रिकॉग्नाइज दिस। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द लॉ इम्प्लीमेंटेड राइट टू वर्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करके बनाया राइट टू वर्क। ठीक है, और वो राइट टू वर्क के अंतर्गत किया जाता है कि राइट टू वर्क जो है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट्स जो है इस चीज़ की श्योरिटी लेती है कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग इन अ कंट्री। तो अंडर दैट in about 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इट इज़ कॉल्ड मनरेगा। देखिए कुछ अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया और इस प्रोग्राम का नाम था मनरेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो मनरेगा में क्या होता है कि जैसे बेसिकली जो गवर्नमेंट्स के वर्क या प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जैसे कहीं पर लेबर की ज़रूरत है, कहीं पर पेंट की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ और की ज़रूरत है, तो उसके बेसिस में गवर्नमेंट क्या है सबको गारंटी जॉब प्रोवाइड कराएगी, जिसको कहा उसकी फुल फॉर्म क्या थी मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इट वाज बीइंग लॉन्च्ड इन 2005 इन 625 डिस्ट्रिक्ट। अंडर द मनरेगा 25 ऑल दोज हु आर एबल, यानी ऐसे लोग जो वर्क करने लायक हैं, आर इन नीड ऑफ वर्क, और ऐसे जिनको वर्क की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे रूरल की बात हो रही है, तो इट दिस वाज बीइंग ओनली इन अ रूरल एरियाज नॉट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, वर्क इन अ रूरल एरियाज आर गारंटी फॉर 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। यानी एक साल में उनको कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गारंटी है कि उनको कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट उनको देगी अंडर द मनरेगा प्रोग्राम्स। ठीक है, दैट वाज बीइंग लॉन्च्ड इन 2005 बाय द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द राइट टू वर्क। ठीक है, जो राइट टू वर्क है उसके अंतर्गत मनरेगा प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था सेंटर गवर्नमेंट। देखिए इफ द गवर्नमेंट फेल in its duty for providing unemployment, it will give unemployment allowance to the people। यानी अगर गवर्नमेंट 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है उनको, उसके मनरेगा के जो लेबर्स हैं उनका मनरेगा कार्ड बना होता है और कार्ड के बेसिस में उनका 100 डे का उनको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ काम मिलता है। और अगर गवर्नमेंट उनको नहीं दे पाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, जिसको कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, the type of the work that would be in future help to increase the production
farm land विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दैट। ठीक है, जैसे ज़मीन पे कहीं पर गवर्नमेंट की रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर एज अ लेबर काम हो गया, कहीं पे कुछ पेंट का काम हो गया, कुछ और वर्क हो गया, दैट इज बीइंग डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट कि किस टाइप ऑफ विच टाइप द वर्क गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू दीज टाइप ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर दैट व्हाट वाज मनरेगा। एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, which type of which is the most important program which was being launched in the central government, तो it was मनरेगा। ठीक है, so I think it is clear कि this was the program which was being launched to the central government to resolve the problem of unemployment in the society। Okay, now the next topic is divisions of the sectors as organized or unorganized। That topic we will discuss in the next video। Thank you very much।